Good morning, students. Our subject is Design of Concrete Structure 1. Our today's topic is Limit State of Collapse of Flexure Rectangular Beam Part 1. In last lecture, we are already studied what is limit state of collapse and what is limit state of serviceability. So, in today's lecture, we are going to study here what is a rectangular beam. By using limit state method, we have to design rectangular beam. Okay, so what is singly reinforced section? The beam in which steel reinforced it is placed in a tensile zone only, it is called as a singly reinforced beam. Here the beam in which steel reinforced is placed in a tensile zone only means in a rectangular beam we are going provided only a steel in a tensile zone. It is called as a singly reinforced section, and the steel bars provided in a compression zone to hold the steel up in position, it is called as a anchor bar. Here two corner we have provided anchor bars. So this is a rectangular beam. D is a capital depth, overall depth. Small d is effective depth above cover. C is a cover. A tensile steel, AST is a main steel, and anchor bars we provided in a compression zone. Here is a tension zone. B is a width of beam, doubly reinforced beam. The beam in which steel reinforced is placed in a tension as well as compression zone to assist the concrete in taking compression. It is called as a doubly reinforced beam. We provided steel both in tension as well as compression zone. It is called as a doubly reinforced beam. In last lectures we already studied what is doubly reinforced beam, what is singly reinforced beam. Okay, so in doubly reinforced beam where we have to reduce the depth of beam, at that condition we provided a doubly reinforced beam. Or depth of beam is more than 750, at that condition also we provided a doubly reinforced beam. So in compression zone as well as tension zone we provided a main steel and compression steel also in both tension and compression zone. D is overall depth, small d is effective depth above the cover. B is width of beam. So now what concept of under reinforced, balanced and over reinforced section we are going to study here. What is under reinforced, balanced and over reinforced section for LSM method, limit state method. So here AST means this concept is for singly reinforced beam. So only in a compression zone we provided AST. It is a AST. So D is capital D is overall depth, small d is effective depth, C is cover, B is a width. Here under reinforced section diagram, so XU is smaller than XU max. This distance it is called as XU max, and this is a XU is a diagram of under reinforced section. What is under reinforced section? We provided a steel in less required for balanced section. So this it is called as a under reinforced section. What is balanced section? We provided a steel not less or not more, balanced, so it is called as a XU max. XU is equals to XU max. Okay, what is over reinforced section? We provided steel more than balanced section, so it is called as a over reinforced section. So XU is greater than XU max.
This distance it is called as a XU max, and this here is a XU. So XU max is greater than XU max. Okay, so what is balanced section? Balanced section is a section in which stress acting in a concrete and that applied in a steel section will attain a permissible value simultaneously. ये बैलेंस्ड सेक्शन में क्या करते हैं हम? स्ट्रेस एक्टिंग इन अ कंक्रीट एंड दैट अप्लाइड इन अ टेंशन सेक्शन. क्या होता है? स्ट्रेस हम एक्ट करते हैं कंक्रीट के ऊपर एंड स्टील वो रेजिस्ट करता है. बैलेंस्ड सेक्शन में द बीम विल फेल ड्यू टू बोथ मटेरियल फेल. यहाँ पे कैसा है? स्टील और कंक्रीट हमने क्या किया है? बैलेंस्डली प्रोवाइड किया है स्टील, तो साइमल्टेनियसली दोनों भी क्या होंगे? साथ में फेल होंगे, कंक्रीट और स्टील. सो द बीम विल फेल ड्यू टू बोथ मटेरियल फेल साइमल्टेनियसली. जैसे कि कंक्रीट भी फेल होगा, स्टील भी फेल होगा, क्योंकि बैलेंस्ड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. अ सडन फेलियर वुड ऑकर विद लेस अलार्मिंग डिफ्लेक्शन. यहाँ पे अलार्म का ये कम होता है, वार्निंग देता है हमें फेल हो, बीम फेल हो रहा है या कॉलम फेल हो रहा है, तो वो हमें वार्निंग प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे लेस अलार्मिंग हमें मिलता है क्योंकि हमने बैलेंस्ड सेक्शन यहाँ पे बोथ मटेरियल बैलेंसली प्रोवाइड किया है, सेम प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से. इन दिस सेक्शन सेम परसेंटेज ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड दैट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन. दिस सेक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस्ट इकोनॉमिकल क्रिटिकल और इंजीनियरिंग सेक्शन. ये कैसा है? यहाँ पे स्टील बैलेंस्डली प्रोवाइड किया है, ना कम है ना ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक भी बोलते हैं. द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज द सेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स. यहाँ पे एक्स यू और एक्स यू मैक्स ये दोनों भी कैसे हैं? सेम कंडीशन में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. इसको बोलते हैं एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स. So what is the under reinforced section? It is a section in which percentage of steel is less than required for balanced section. Balanced section को जो स्टील हमने प्रोवाइड किया था उससे कम हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन. In case of under reinforced tensile steel reaches a maximum permissible stresses in bending first. यहाँ पे क्या होता है कि स्टील रीचेस फर्स्ट. यहाँ पे स्टील हमने कम प्रोवाइड किया है, तो स्टील पहले मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग प्रोवाइड करेगा. सो द बीम विल फेल ड्यू टू ओवर स्ट्रेस इन स्टील. क्योंकि क्या है, स्टील हमने यहाँ पे कम प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से स्टील ओवर स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर और वो फर्स्ट फेल होगा. बीम विल फेल फर्स्ट ड्यू टू ओवर स्ट्रेस इन स्टील. ओके, so when amount of steel is kept less than required for balanced section, the position of neutral axis shift upward satisfy equilibrium condition. तो ये ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे एक्स यू इज स्मॉलर देन एक्स यू मैक्स. यहाँ पे हमने देखा है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में देखो एक्स यू ऊपर है एक्स यू मैक्स से, ये है हमारा एक्स यू मैक्स, इसके ऊपर एक्स यू है, क्योंकि क्या हमने यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन. और ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ स्टील वी प्रोवाइडेड हियर, बिकॉज ऑफ दैट बीम विल फेल फर्स्ट. ओके, सो एवरी सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन should be designed as a under reinforced section because this section give enough warning before failure in a form of large deflection associated with well distributed crack. तो हम क्या करते हैं, बहुत बार ये सिंगली अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये हमें इनफ अमाउंट ऑफ वार्निंग प्रोवाइड करता है. क्योंकि हमने देखा बैलेंस्ड सेक्शन में लेस वार्निंग प्रोवाइड कर रहा है, लेस अलार्मिंग होता है डिफ्लेक्शन से पहले, और उसकी वजह से ये जल्दी से फैल जा सकता है. लेकिन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में हमें इनफ वार्निंग प्रोवाइड करता है. तो हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है या फिर ब्रेक होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में हमें वार्निंग मिले तो पीपल्स बाहर जा सकते हैं, तो ह्यूमन लॉस नहीं हो सकता है. ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं.
नेक्स्ट है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो हमने देखा व्हाट इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, द अमाउंट ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड लेस देन बैलेंस्ड सेक्शन, इट इज कॉल्ड एज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन. So what is over reinforced section? It is a section in which steel is more than required for balanced section. हमने यहाँ पे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया है, we provided a steel more than required for balanced section. In case of over reinforced concrete reaches their permissible stresses level first, so the beam will fail due to over stress in concrete. तो ये concrete में over stresses होने की वजह से fail होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टील ज़्यादा प्रोवाइड किया है. When the amount of steel is kept more than required for balanced section, the position of any shift डाउनवर्ड टू सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो यहाँ पे कैसे होगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे की शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा. तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया है. इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन फेल्योर take place by a crushing of concrete along, and therefore failure is sudden and explosive nature without any warning signs. यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड नहीं होगी क्योंकि कंक्रीट पहले फेल होगा ओवर स्ट्रेस इन कंक्रीट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो ये स्टील में नहीं फेल होगा. ओके तो इन तीनों भी कंडीशन में हमने देखा. बैलेंस्ड में वार्निंग कम होती है, ओवर एनफोर्समेंट में तो वार्निंग विदाउट एनी वार्निंग ये फेल होता है. अंडर एनफोर्स सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग मिलती है. तो बहुत हम क्या करते हैं, LSM मेथड में अंडर एनफोर्स्ड यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं. ओके सो यहाँ पे हम अभी स्टडी करेंगे स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स. The stress strain behavior of concrete under a compression is generally obtained from cylinder or cube of concrete. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग यूटीएम और सीटीएम हम एक क्यूब कास्ट करते हैं और उसके ऊपर टेस्ट लेते हैं. तो वो कैसे फेल होगा उसकी स्टडी हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं. तो उसका ग्राफ कैसे आएगा कंप्रेशन में, इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम सिलेंडर और क्यूब. यहाँ पे सिलेंडर भी हम कास्ट कर सकते हैं या फिर क्यूब भी हम यहाँ पे कास्ट करके ये स्टडी करेंगे. सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेसिव लोडिंग वेयर एज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर यूनिफॉर्म फॉर अ क्यूब, दे वैरी अक्रॉस द डेप्थ ऑफ अ फ्लेक्चर मेंबर. द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम फ्लेक्चर compression in beam, the crushing strength of cube is likely to be a different from unity. The IS code recommended the compressive strength of concrete in a structure equal to 0.67 times of characteristic strength. मतलब यहाँ पे हम स्ट्रेस कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, 0.67 इंटू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है फिर 0.67 इंटू FCK. ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन के लिए ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर है. तो ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में देखो यहाँ पे कैपिटल D दिया है ओवरऑल डेप्थ, स्मॉल d मतलब इफेक्टिव डेप्थ, B मीन्स विड्थ दिया है, AST मीन्स ये बार्स प्रोवाइड किए हमने कॉम्प्रेशन जोन में. यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा XU है, ये बैलेंस्ड के लिए हमने ऐसे प्रोवाइड किया है. एप्सिलॉन XU मतलब क्या है, ये स्ट्रेन है, और ये नीचे वाली डेप्थ क्या है D माइनस XU. ये स्मॉल d मतलब इफेक्टिव डेप्थ माइनस ए यहाँ तक XU है. तो ये इतना डिस्टेंस क्या आएगा फिर D माइनस XU. और ये देखो स्ट्रेन यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, हमने पहले एक ग्राफ देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जो ग्राफ में हमने स्ट्रेन निकाले थे. तो ये हमारी 0.0035, वो ग्राफ कैसे आएगा, स्टील कहाँ तक फेल हो रहा है, कंक्रीट कहाँ तक फेल हो रहा है, उसका हमने एक ग्राफ निकाला था, उसके ऊपर से हमने ये 0.0035 ये स्ट्रेन हमने यहाँ पे लिया है. तो नेक्स्ट है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम. यहाँ पे हमने स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम देखी, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम. तो ये देखो TU मतलब क्या है, टेंशन में कैसे ये लोड कितना एक्ट हो रहा है, और CU मतलब कंप्रेशन में ये यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है.
तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 0.57 XU इंटू 0.43 XU, इतना ये डिस्टेंस है। ये नीचे वाला है 0.57 और ऊपर वाला है 0.43। ये यहाँ पे प्रोवाइड किया है 0.45 FCK, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 0.42 XU। तो ये है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, मतलब इसके ऊपर कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ये हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, तो वेयर बी इज अ width of section, d is a small d is effective depth, capital D is overall depth, C is effective cover, AST is area of tensile reinforcement, NE is neutral axis, X is the depth of neutral axis, epsilon XU is a maximum strain in concrete, EXU is maximum strain in steel, C is a concrete and S is a steel. Fy is characteristics tensile in steel, X is characteristics compressive stress in concrete, X is ES is a modulus of elasticity for steel. So moment of resistance of SRRS means singly reinforced बीम सेक्शन के लिए हम यहाँ पे मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है उसकी स्टडी अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ RC सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए हम ऐसा भी बोलते हैं मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है इसमें। द कंप्रेसिव फोर्स C इन कॉन्क्रीट एंड टेंसाइल फोर्स TU। CU मीन्स क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इन कॉन्क्रीट, एंड TU मीन्स टेंसाइल फोर्स इन स्टील, आर इक्वल एंड अपोजिट एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। D माइनस 0.42 XU, वॉट इज 0.42, ये यहाँ पे देखो आप, ये जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर से इसमें ये जो ग्राफ आ रहा है, तो ये 0.42 XU ये हाफ हमने यहाँ पे लिया है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीवर आर्म, इसको हम Z भी बोलते हैं। Z इज इक्वल्स टू D माइनस 0.42 XU। The couple moment is a moment of resisting and it is also called as a moment carrying capacity। और फर्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, MU इज इक्वल्स टू TU इंटू Z। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU क्या होता है, मोमेंट ये हम टेंसाइल फेल्योर के लिए, TU मीन्स टेंशन इन स्टील एंड CU मीन्स टेंशन इन कंप्रेशन फेल्योर, ऐसे हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेंशन फेल्योर, सो आएगा TU इंटू Z। सो MU TU की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे हमने देखा है 0.87 FY इंटू AST, ये आता है TU। और Z हमने देखा D माइनस 0.42 XU, हमने यहाँ पे देखा Z क्या है, लीवर आर्म, लीवर आर्म की वैल्यू क्या है D माइनस 0.42 XU, तो ये आएगा लीवर आर्म। और TU क्या है, टेंसाइल फेल्योर, तो टेंशन हम यहाँ पे खींच रहे हैं, तो ये देखो ये टेंशन है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.87 FY इंटू AST। ये हम मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें डिज़ाइन करने के लिए लगने वाला है। तो हमने ये देखा फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन MU इज इक्वल्स टू TU इंटू Z। तो यहाँ पे आने वाला है कंप्रेशन फेल्योर, बट ओवर रेनफोर्स्ड आर नॉट परमिटेड इन RCC डिज़ाइन, हमसे एज्यूम बैलेंस सेक्शन। हम क्या करते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टील लगेगा, लेकिन ये कोई भी वार्निंग प्रोवाइड नहीं करने का। हमने देखा है कि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में वार्निंग नहीं आती है, तो वार्निंग नहीं आता है तो हमने कैसे पता चलेगा कि ये बीम फेल होने वाला है, नहीं तो हम इसके लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन एज अ बैलेंस्ड रेनफोर्स्ड सेक्शन भी एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर बैलेंस्ड सेक्शन TU इंटू Z MU, और हम ऐसा भी लेते हैं बैलेंस्ड रहिए तो हम CU इंटू Z भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। तो TU इंटू Z भी लिया तो चलता है, CU इंटू Z भी, Z इज अ लीवर आर्म। तो हम XU क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, XU मैक्स।
एम यू इज इक्वल टू एम यू मैक्स 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। हमने यहाँ पे देखा कि z क्या होता है, d माइनस 0.42 एक्स यू, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है एक्स यू मैक्स, और यहाँ पे हमने लिया है 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स इंटू बी, क्योंकि ये 0.87 काय के लिए आएगा, ये टेंशन के लिए आएगा, अंडर रेनफोर्स्ड, और बैलेंस्ड आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स इंटू बी। तो यहाँ पे बैलेंस्ड में हम 3 स्टील है हमारे पास में। आपको पता है कि स्टील के 3 ग्रेड्स है, फर्स्ट है Fe250, सेकंड है Fe415 और थर्ड है Fe500। तो हमने देखा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तीनों के लिए भी, मतलब Fe250, Fe415, Fe500 के लिए फॉर्मूले सेम ही थे, लेकिन LSM मेथड में आपको ध्यान में रखना है कि ऑल, मतलब Fe250 प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया हमें Fe250, तो उसका पूरा डिटेलिंग अलग होगा। Fe415 के लिए भी मोमेंट अलग होगा, और Fe500 के लिए मोमेंट, स्टील, ये सारी चीज़ें अलग ही होगी। तो ये हमें यहाँ से ही स्टडी करना है कि इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें प्रोवाइड किया है स्टील, उसके लिए हमें मैक्स निकालना है, तो उसके फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर Fe250, तो ये माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए SU मैक्स की वैल्यू है 0.53 डी। ये हमने 0.53 डी कैसे निकाला है ये आपको लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू ई एस, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है। एफ वाई क्या है, ई एस क्या है, ई एस मतलब हम मोमेंट मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, यह है ई एस। तो ई एस की वैल्यू है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 2 × 10⁵। तो ये सारा चीज़ें निकालने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम फिर 0.36 एफ सी के, यहाँ पे हमने लिया है फिर 0.53 डी, ये यहाँ पे बी सेम है, और डी क्या है हमारा, डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू पुट किया है 0.53 डी, तो यहाँ पे एम यू मैक्स आएगा 0. ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, फिर 0.36 इंटू 0.53, ये आएगा 0.148 एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वेयर, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो एम यू मैक्स आएगा 250 के लिए 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वेयर। फॉर Fe415 के लिए आएगा, एक्स यू मैक्स की हमने वैल्यू पुट किया है 0.48 डी, ये भी हमने ऐसे ही निकाला। स्टिल यहाँ पे हमने कितना प्रोवाइड किया है, एफ वाई की वैल्यू 415, तो उसकी वजह से हमारा डी आएगा, यहाँ पे एक्स यू मैक्स आएगा 0.42 डी। तो एम यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने ऊपर वाला, 0.36 टू 0.48, एक्स यू मैक्स की जगह हमने क्या पुट किया है 0.48 डी इंटू बी, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है 0.48 डी। सो ये आएगा एम यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये आएगा Fe415 के लिए, और Fe500 के लिए आएगा एक्स यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.46 डी। तो एक्स क्यू मैक्स की जगह हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है 0.46 डी, तो 0.36 एफ सी के एम यू मैक्स की जगह आएगा 0.46 डी इंटू बी, तो डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स की वैल्यू है 0.46 डी। तो ये आएगा Fe500 के लिए एम यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वेयर, ये आएगा Fe500 के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर 250 के लिए ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर 250 के लिए एम यू निकालना है हमें आपको, तो क्या फॉर्मूला आएगा 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वेयर। Fe415 के लिए लेना है तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वेयर, और Fe500 के लिए आएगा 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वेयर। तो आपको पता है 250 आएगा तो वैल्यू ज़्यादा है, Fe41 आएगा तो वैल्यू कम होगी, और 500 आएगा तो वैल्यू और भी कम होगी। तो ऐसे ऑर्डर में आप ध्यान में रख सकते हो ये एम यू की वैल्यूज़। ओके,
तो यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया है, ये चार्ट भी आप ध्यान में रखेंगे तो आप सारे प्रॉब्लम्स आगे जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट्स है। ग्रेड ऑफ स्टील है हमारे पास में Fe250, Fe415, Fe500 और क्रिटिकल डेप्थ है यहाँ पे 0.53D, 0.48D और 0.46D। यहाँ पे MEMAX की वैल्यू है 250 के लिए 0.148 FC के BD² और इसके लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है 0.088 FC के परसेंटेज। Fe415 के लिए डेप्थ है 0.48D। इसके लिए मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MEMAX है 0.138 FC के BD² और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.048 FC के परसेंटेज। Fe500 के लिए है 0.46D और इसके लिए MEMAX है 0.133 FC के BD² और परसेंटेज है 0.038 FC के परसेंटेज। तो ये चार्ट हमने यहाँ पे देखा, ये आपको ध्यान में रखना है कि हम जो भी डिज़ाइन करने वाले हैं तो डायरेक्टली हम ये चार्ट में से ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, ग्रेड ऑफ स्टील, जैसे ग्रेड ऑफ स्टील दिया जाएगा Fe250, Fe415, Fe500, तो उसके लिए आपको ये डेप्थ कितना होना चाहिए, मूवमेंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ से लेना है। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है व्हाट इज़ सिंगली रेनफोर्स्ड स्टील, व्हाट इज़ डबली रेनफोर्स्ड स्टील और स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स हमने यहाँ पे स्टडी किया है। और हमें माइल्ड स्टील के लिए या फिर Fe415, Fe500 के लिए हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील के लिए कितनी डेप्थ आएगी, कितना मूवमेंट आएगा, कितना परसेंटेज स्टील आएगा, वो भी हमने यहाँ पे चार्ट में स्टडी किया है। किसी को कुछ डाउट होगा आज के लेक्चर में तो आप चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके।